Good morning, fellow zoologists and dignitaries. Today is a day to celebrate the power of imagination and the beauty of zoology as we gather here for the inauguration of our Zoological Society, Chimera, session 24 to 25. Let us embrace the spirit and the wonders of science. Let us use this opportunity to challenge ourselves, connect with others, and explore new horizons. Thank you to each one of you for taking out your precious time from your schedule to join us today here. So let's get ready to paint the canvas of our knowledge with colors of our imagination and make this day a memorable one. To make this morning a blessed one, let us invoke Goddess Saraswati by lighting the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings for the same, I would now like to invite our guest and speaker of the event, Mr. Sayyid Faraz Haider Nabi Sir, Assistant Director, General Flaggy, Department of Post, Ministry of Communications, our Principal Sir, Professor Rajendra K. Pandey, Vice Principal Sir, Professor Sunil Kais, our admirable teacher in charge, Professor Indrakant K. Singh, and our staff advisors, Dr. Sandhya Ma'am and Dr. Kiranwala Ma'am on stage, and Professor Varsha Paveja Ma'am and Professor Manisha Ma'am on stage to light the lamp of wisdom. Also, I would like to invite Professor Kamal Kumar Gupta Sir on stage, Shazad Sir and Jitendra Sir on stage to light the lamp on stage. With wisdom and prosperity. Ma, please give us wisdom and take us under your shelter. As we know, Ma Saraswati is goddess of knowledge, learning and art, and no scholastic event can be completed without her. So let us begin this event with blessings of Ma Saraswati with Saraswati Vandana by Manisha from the first year of zoology. Please give a big round of applause to her.
या कुन्देन्दु तुषारहार भवरा या शोभि वरसावृता या वीणा वरदन मंडितकरा या श्री या ब्रह्मा अर्चक शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता तामां पातु सरस्वती भगवती
for the Kulgi. Get ready for all the delight as today we will catch sight of some great dances. So let us gear up for a striking beginning of the event as our talented students have choreographed some of the amazing dance performances. Bharatanatyam is an ancient Indian dance form that originated in Tamil Nadu, characterized by a beautiful blend of music, dance and expression. So at first, we have Bharatanatyam prepared by Preeti from Rivayat, the Indian Dance Society of Deshbandhu College. So let us welcome her with a huge round of applause. Don't remove your attention guys, as now we have a very beautiful semi-classical performance by Sri Lakshmi and Ritu from second year of zoology. Let us give them a big round of applause. कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना वो नील अंग सा रूप रंग ले समाधि प्रेम भंग रंग अंग फिर मन रंग पतंग पतंग सरवाना मुरली की ये सुन राधिके मुरली की ये
What a graceful performance indeed. Please appreciate them by another round of applause. Thank you so much, sir. Next, I would like to ask Professor Kamal Kumar Gupta, sir, to welcome our Vice Principal, Professor Sunil Kais, sir, with a sapling and a painting made by Ujjwal from first year. Now, I would request Professor Manisha ma'am to welcome our teacher in charge, Professor Indukant K. Singh, with a sapling. टीचर इंचार्ज को वेलकम करने की जरूरत नहीं है, ये टीचर इंचार्ज का ही प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है. Rather, I will welcome our senior most faculty, Professor Kamal Kumar Gupta sir. You are on the dais. Thank you, sir. They say true guidance and courage by someone can be like a spark to success. Namaste everyone. Respected guests and today's speaker, Mr. Syed Faraz Haidar Nabi sir, respected Vice Principal sir, Professor Sunil Kais, Teacher in charge sir, Professor Indukant Kumar Singh sir, respected Kamal sir, respected faculty members and dear students. It is with great pleasure that I extend my warmest welcome to you all on behalf of Zoological Society, Department of Zoology, to this event. Mythologically, the chimera is often depicted as a fusion of several animals who has combined strength of lion's energy, goat's cunning, and snake's venom. Today's advances in genetic engineering also shows that chimeric animals hold huge potential in the field of medicine, physiology, as well as basic research. So, our Zoological Society named Chimera encourages our students to reach their maximum potential not only in academics but also in extracurricular activities in order to develop a complete persona ready to face any challenge of life. And today is the inauguration of our Zoological Society Chimera for this session. And today we are honored to have Mr. Syed Faraz Haidar Nabi sir as our guest and speaker. Thank you sir for taking out time from your busy schedule. Thank you sir. And we are really looking forward to listen to you in the interesting talk on phylogeny of animals. Thank you everyone. Thank you so much, ma'am. Your kind words were really enlightening and a much needed fuel for this event. Further, now I request our dynamic leader and Professor Kamal Kumar Gupta sir to address the gathering.
Namaste. The honorable guest and distinguished personality on the dais, respected dear colleagues and lovable children. Welcome to the inaugural session of Chimera 24-25. We always boast of Zoology Department as one of the best departments in the college and also in the university. And that's what is being seen here. We are hosting the inaugural function on such a fantastic topic, such a lovely topic, and flattering. I congratulate the organizers for hosting the most apt function and having one of the finest speakers with us, and also the title of the talk these days. I know with the passage of time, with advancement in technology and cell phone computers, the real charm in the animal kingdom or animals is vanishing. So this may be the most apt platform where you will see the excitement what is there in the animal kingdom. Without taking much of the time, I think all of us are eagerly waiting to hear our dearest speaker. I extend my best wishes and blessings to the department and all of you for hosting such a lovely function. Thank you. Heartiest thank you to you, sir. Now, I would like to request our Vice Principal, Professor Sunil Kaish, to have some few words of wisdom to us. Thank you, sir. Asked to speak in few words. No, I will not speak a few words. Let me tell you one thing. First of all, our honorable speaker, Sayyid Faiz Haidar Nabi Sahab, who is a ADG military in Department of Post, Ministry of Communication, Government of India. Our senior most faculty member, Professor Kamal Kumar Gupta, our director, teacher in charge, Professor Indranath Kesi, my senior faculty, Varsha ma'am, and one of my friends, Dr. Monica from AIDC College, Dr. Sandhya, Dr. Kiran, Manisha ma'am, Shahjaz sir, Jitendra sir, S.M. Jha sir, Gopi sir, Sushma ma'am, and all third year students, second year students, first year students, और हो सकता है बाहर से आए कुछ और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स. I think I joined as a vice principal in Deshbandhu College 1 महीने पहले, और इस 1 महीने में मैंने लगभग 40 से 50 के करीब प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत की है. कभी नर्वस नहीं हुआ. आज थोड़ा सा नर्वस हूँ. आज अपने घर में बोलने के लिए, अपने स्टूडेंट्स के बीच में बोलने के लिए मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर्स को, कायमेरा सोसाइटी को, और कायमेरा सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया है. और मैं बात देना चाहूँगा मैम, जो स्पीकर हैं आज के, उनका रेलेवेंस कितना है ज़ूलॉजी से, वो आज उनकी टॉक से एक्सप्रेस होगा. टॉक से एक्सप्रेस होगा. मैं आज थोड़ा सा एक्सप्रेशन पे बोल रहा हूँ. मैंने देखा तो बच्चों ने वहाँ डेकोरेट किया हुआ है इंडिफैक्स, 2 मीटर स्टैंड को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है. शायद यहाँ डायस पे भी एक पोस्ट को डिस्प्ले किया हुआ है. कई जगह और भी बहुत सारे पोस्ट को डिस्प्ले किया हुआ है, और उन सभी के अंदर, उन सभी पोस्ट में किसी न किसी एनिमल का पोर्ट्रेट, चित्र है. एनिमल्स, यदि हम बात करें
तो ज़ूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ऐसा नहीं है कि हम खाली एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजी में बहुत सारे विषय हैं जो साइंस के सभी अलग अलग एरिया के सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन कितना इम्पोर्टेंट विषय है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के हम बात करने वाले हैं, एनिमल्स को लेकर के बात करने वाले हैं। यदि ये नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है। मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, वी हैव बीन इनवाइटेड टू से आवर ऑफरिंग टू मां सरस्वती, गॉडेस सरस्वती। मेरे भाव को ऐसे निकले थे कि मैं सच में मां सरस्वती के सामने हूँ और मेरे एक्सप्रेशन ऐसे हों जो दिखाने मात्र ना हो। मैं सच में महसूस कर रहा था उस ओरा को, उसकी ताकत को। जब मैंने स्टूडेंट का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी तो कुछ बच्चे डांस परफॉर्म कर रहे थे, मैं उनके एक्सप्रेशन, उनके भाव, उनकी फीलिंग्स वो नोट कर रहा था। गाने के बोल के साथ कितना सिंक कर रहे थे, कितने अच्छे तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे थे, वो काबिल तारीफ था। उसके बाद कमल सर ने जो स्पीच दिया वो भी काबिल तारीफ था, उसमें भी एक्सप्रेशंस थे। और जो आज हमारे स्पीकर हैं, अपनी टॉक से आप लोगों को कुछ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, कुछ अवेयरनेस की बात करेंगे। फिलिटैली, न्यूमिस्मेटिक्स, ये दो ऐसी हॉबीज मैंने कभी अपने 8th क्लास में सुनी थी, लेकिन उनको जीते जागते, जीते हुए, एक्सप्रेशन होते हुए आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ। एडीजी साहब ने मुझे कोई बुक दिखाई, स्टैम्प बुक, उसमें देयर वाज अ कलेक्शन ऑफ सम स्टैम्प्स। वो स्टैम्प्स इतनी अट्रैक्टिव, इतनी फैबुलस, इतनी मनमोहक हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं वही बात कर रहा था, स्टैम्प की बात करें तो एक 1 रुपये स्टैम्प हम यूज करते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प या पोस्टल कार्ड। आजकल तो नहीं इतना चलन में है, हम यूज नहीं करते, मेल का जमाना आ गया है। लेकिन पोस्टल कार्ड, स्टैम्प के माध्यम से देश भर के लोगों में किस तरह से अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, वो आज के टॉक से हमें पता चलेगा। बच्चों, हम जहां पर भी हैं, यदि हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़ा फेलियर है। We as a teacher, we are not able to express ourselves in our subject, it's our failure. You as a student, आप अपने आप को zoology का स्टूडेंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, that is your failure. चाहे कहीं पर भी रहे, आप स्टूडेंट हैं, आपके भाव, आपके एक्सप्रेशन, आपके कैरेक्टर, उनमें ज़ूलॉजी झलकनी चाहिए। जब आप स्टूडेंट हैं तो एक्सप्रेशन वैसा हो, जब आप एक बच्चे हैं अपने पिता के सामने, तब भी आपके एक्सप्रेशन अपने पिता के सामने एक औलाद की तरह एक्सप्रेस होने चाहिए। I was really amazed, जो डांस लड़की कर रही थी, वो वीणा को ये रिप्रेजेंट कर रही थी। वो एक दानव की जब बात आई तो वो दानव जैसा एक्सप्रेशन दे रही थी। जब गॉड की बात या गॉडेस की बात आई तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल वो गॉडेस जैसे दिखाई दे रहे थे। यही हमारा शास्त्रीय संगीत है, यही हमारा शास्त्रीय नृत्य है। किसी भी क्लासिकल डांस को आप उठा करके देखेंगे, उसमें केवल और केवल हमारे भारत की संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है, एक्सप्रेस होती है। उसमें हमारी कल्चर, उसमें हमारा रिलीजन, उसमें हमारी बायोडाइवर्सिटी एक्सप्रेस होती है। इस डांस में आपने देखा होगा, लगभग 2 मिनट के डांस में कुछ 30 या 35 सेकंड में एनिमल्स को दर्शाया गया। दैट इज एक्सप्रेशन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। So try to see within you, क्या हम ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। यदि आपको अपने माता पिता से कोई बात मनवानी है तो आपके एक्सप्रेशन वैसे होने चाहिए, और देखिएगा आपका काम बन जाता है। आप अपने टीचर से कोई बात मनवाना चाहते हैं, बहुत बार आप करते हैं, सर 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 करके, और टीचर इतने होते कि हम बात मान जाते हैं। दैट डिपेंड्स कि आप कितनी शिद्दत से उस चीज़ को मनाते हैं।
सो मेरा यही मैसेज है आप बच्चों को, जहाँ पर भी चाहें, यू आर स्टूडेंट ऑफ ज़ूलॉजी, आपके अंदर ज़ूलॉजी एक्सप्रेस होनी चाहिए। जिस विषय की बात कर रहे हैं वो विषय आपके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। थैंक यू सो मच। इन बातों के साथ मैं आज के कन्वीनर को, आज के प्रोग्राम के जितने भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मोनिका मैम ANTC से आई, ये हमें भी बुलाती है। इनके कॉलेज के स्टूडेंट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं और मैं बहुत ही इंजॉय करता हूँ, रिलेश करता हूँ। हम सभी कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your kind words. Further, now I would like to request our dynamic leader and teacher in charge, Professor Indrakal K. Singh, to address the gathering. Good morning, one and all. Respected Sayyid Faiz Haider Nabi Sahab, today's speaker. Respected colleagues and dais, fellow colleagues from our colleges and other colleges, especially Dr. Monica Mishra, and all my dear, rather I should say friends, but young mind of India. Thank you for organizing this wonderful event, and a special thanks to our convener for choosing this very relevant and specific topic, that's called philadelphia of animal. मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे हैं जो कभी लेटर लिखा होगा। पोस्ट ऑफिस कितने गए हो, एक बार हाथ उठाओ। वेरी गुड। और कितनों ने लेटर लिखा है? आधे से भी कम हो गए। और कितनों ने रजिस्टर्ड पोस्ट किया है? इसमें से चिट्ठियां नहीं लिखी होंगी। जो पोस्ट ऑफिस गए थे ना, वो आधे वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई एप्लीकेशन या कोई फॉर्म भरा होगा। चिट्ठियां इनमें से शायद 10 बच्चे भी नहीं लिखे हों। तो एटलीस्ट कन्वीनर और हमारे आज के स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद, वो दिन फिर से याद कराया। और मैं आप सबसे कहूँगा, आज के प्रोग्राम के बाद एक बार ये म्यूजियम जरूर जाना। और बाकी रिलेवेंट बातें मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब आपके सामने सूरज हो तो दिया जलाने की क्या जरूरत है। तो असली बात तो वो करेंगे आपसे। हाँ, लेकिन आज के इस प्रोग्राम की वजह से मुझे 2-4 लाइन याद आ गई, वो मैं जरूर शेयर करूँगा। बट कोई भी बात टेक्निकल बोलने से पहले मेरी एक मजबूरी है, मैं बिना विवेकानंद को याद किए आगे बढ़ता नहीं। तो एक बात बच्चे याद रखना, हर ओकेजन पे मैं बोलता हूँ, एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी इफ यू आर लेजी। सो ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी, बिजी एंड बिजी, देन ओनली लाइफ बिकम इजी, इजी एंड इजी। बस 2 लाइन बोल देता हूँ, क्योंकि स्टैम्प की बात आई, चिट्ठियों की बात आई, और कुछ पुरानी बात हम याद न करें तो रहा नहीं जाता। तुम्हारे टाइम की बात कर रहा हूँ, जब मैं तुम जैसा, वो इंतजार की कोशिश, मैंने गलत वर्ड यूज किया, वो इंतजार की कशिश, उंगलियों का फिराना, लबों से चूमना, खुशबू से तरबतर हो जाना, वो सबसे छुप छुपा के लफ्जों के जादू में खो जाना। याद आ रहा है आज फिर वो चिट्ठियों का जमाना। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Your kind words were really uplifting and motivating. Now, as we feel privileged to have such a distinguished speaker, I would like to give you all a brief introduction about the accomplishment, academic attainment, and field of our honorable guest speaker.
Our speaker serves as the Assistant Director General Flatly in the Departments of Post, Ministry of Communication. He also served as a member of prestigious Indian Postal Service from 2018 batch. He holds a BTech degree in the Mechanical Engineering from Jamia Millia Islamia, bringing a strong technical background to his administrative role. His leadership in Flatly helps preserve and celebrate India's rich postal heritage, which fostering public interest in stamp collection and postal history. Now it's time for the most awaited talk by our chief guest, Mr. Syed Faraz Haider Rabi sir, who has graciously accepted our invitation to join us today. I am sure that this interaction with him will be a valuable learning experience for all of us. So sir, can we please have you on the stage? Faculties and students of Deshbandhu College. Thank you so much for such a warm welcome and beautiful dances. As I was not expecting this kind of welcome, I thought that I will come give lecture and go away. लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ यादगार बना दिया मेरे लिए, और मैं जब जाऊंगा अपने डिपार्टमेंट में तो अपने कलीग्स सीनियर से शेयर करूंगा। फिलहाल में स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सर ने चिट्ठियाँ की याद दिला दी, अपने स्टूडेंट्स लाइफ की कुछ यादें शेयर कर दी आप लोगों के साथ, और आप लोगों की वोटिंग देखकर मुझे लगा मुझे भी अपने कॉलेज डेज याद आ गए। हम लोग भी ऐसे ही पीछे बैठा करते थे और जो कोई लेक्चर देने आए तो वोटिंग करते थे पीछे से। वो बात कुछ और कहते थे, हम समझते कुछ और कहते क्योंकि हर एक अपने ख्याल में डूबता है और समझते हैं उन बातों को। तो फ्लैटली ऑन एनिमल्स एक ऐसा टॉपिक, जब संध्या मैम ने मुझे बताया कि सर आप आए और एक लेक्चर दें, तो पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा फ्लैटली ऑन एनिमल्स पे क्या लेक्चर देना है, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, ज़ूलॉजिकल डिपार्टमेंट का रिश्ता जानवरों से बहुत गहरा है, और जो हम काम करते हैं, हम जो फ्लैटली स्टैम्प्स निकालते हैं, उनको बताना, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। इट इज मी माई ड्यूटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो द डिटेल्स व्हाट इंडिया पोस्ट इज डूइंग, what stamp stands for, what flatly means, because this is a dying art. Now people are no more interested in looking into stamps and flatly, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को रूबरू करवाऊँ, चीज़ें बताऊँ आपको कि स्टैम्प्स क्या होता है, फ्लैटली सेक्शन क्या कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, क्योंकि आज पोस्ट ऑफिस कोई नहीं जाता है, बहुत कम लोग जाते हैं। पोस्ट लेटर्स पोस्ट करने जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजने जाएंगे, स्पीड पोस्ट करने जाएंगे, लेकिन वो भी आजकल डिजिटल होने लगा है, स्टैम्प्स नहीं खरीदते हैं आप। और स्टैम्प्स की अहमियत मैं आपको ये बताऊं कि अभी सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये देखा गया कि कौन सी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देती है, तो तीसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट में आया कि स्टैम्प्स। आपको स्टैम्प्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्लैट लिस्ट, उनको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आता है, और आज भी आप देखेंगे कोई स्टैम्प्स अगर निकलता है तो सबसे पहले फ्लैट लिस्ट होते हैं, वो उसको खरीदने के लिए लाइन में लग जाते हैं। और क्योंकि हम लोग आज डिजिटल एज में, हम लोगों का कनेक्शन मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट से ज़्यादा है, हमारा कनेक्शन एक दूसरे से बहुत कम है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने आप में काफ़ी हैं, जानते हैं
हम जो जानते हैं, जो पढ़ते हैं, वो काफ़ी है। हम एक दूसरे से सीखना नहीं चाहते हैं आजकल, क्योंकि हमें बोरिंग लगता है किसी की ज्ञान भी सुनो, और खासकर न्यू जनरेशन। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब किसी से बात करें, किसी चीज़ के बारे में समझें, तो इस तरीके से समझें कि हमें कुछ नहीं आता है। वी डोंट नो एनीथिंग, वी शुड लर्न फ्रॉम हिम और हर। मैं भी लेक्चर की तरफ जाने लगा, सॉरी कुछ लोग सो जाएंगे, यहाँ पर नींद आ रही है, मैं देख रहा हूँ। स्लाइड्स आगे करेंगे। सो इंडियन फ्लैटली की इंट्रोडक्शन में मैं बताऊं कि फ्लैटली स्टैम्प्स एक मीडियम है। वो मीडियम है आपके कल्चर को समझने के लिए, आपके हिस्ट्री को समझने के लिए, आपकी माइथोलॉजी को समझने के लिए, आपकी कंट्री को समझने के लिए। ये स्टैम्प्स एक जर्नी है, और खासकर इंडिया पोस्ट जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा नेटवर्क पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है, 1,54,000 पोस्ट ऑफिस इंडिया में। और ये नेटवर्क लोगों को कनेक्ट करता है, कहीं न कहीं हर एक इंडिविजुअल इस पोस्ट ऑफिस से कनेक्टेड है, और वो देखता है कि हमारी लाइफ को ये अफेक्ट कर रहा है। दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच हैज सच अ डीप रूटेड प्रेजेंस इन इंडिया। किसी भी दूसरे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाएंगे तो इतनी डीप रूटेड प्रेजेंस नहीं है। वी आर फ्रॉम कश्मीर, लद्दाख टू कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट टू गुजरात। हर एक गांव में आपको पोस्ट ऑफिस दिख जाएंगे। उसके रीजंस यही हैं कि हमारा काम सिर्फ सर्विस देना नहीं है, हमारा काम लोगों को कनेक्ट करना है एक दूसरे से। दिस इज व्हाट इंडिया पोस्ट मीन्स, दिस इज व्हाट फ्लैटली मीन्स। We are not giving you knowledge in anywhere, but we are giving you information about India and India's culture, heritage through stamps. और आज स्टैम्प्स लोग कब देख पा रहे हैं, उसके रीजंस ये है कि इंडिया पोस्ट ने स्टैम्प्स को आपके बीच लाने के लिए अभी तक टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप नहीं किया है। और अब हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्टैम्प्स की अवेलेबिलिटी थ्रू टेक्नोलॉजी आपके फिंगरप्रिंट्स पे पहुंच जाए। ये फ्लैटली डील्स विद प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं: कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स, मिनिएचर शीट्स, शीटलेट्स, माई स्टैम्प, एनुअल पैक्स, फर्स्ट डे कवर, ब्रोशर्स, स्पेशल कवर, पिक्चर पोस्ट कार्ड, फ्लैटली कैंसिल। ये सारी चीज़ें जो फ्लैटली डिपार्टमेंट डिवीजन देखता है। स्टैम्प्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सीपीएस जिसको कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प कहते हैं, एक होता है सीएमएस कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प। सीपीएस की जो बात होती है वो बात होती है जनरल स्टैम्प्स जो आप पोस्ट ऑफिस में देखते हैं, और सीएमएस जो होता है कॉर्पोरेट माई स्टैम्प कहिए, कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प कहिए, वो कस्टमाइज होता है आपके फोटो के साथ, आपके लोगों के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के लोगों के साथ वो प्रिंट होता है। उसको कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प कहते हैं। मैंने आपको बताया कि फंक्शंस ऑफ फ्लैटली डिवीजन: इवेंट्स एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना, कमेमोरेट करना, पब्लिक engagement in international relations। रिसेंटली हमने इंडिया रोमानिया के फ्लैट डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर स्टैम्प रिलीज किया था, क्योंकि इंटरनेशनल एरिना में इंडिया का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और इस इम्पोर्टेंस को भी हम लोग डिफरेंट कंट्रीज के साथ टाई अप करते हैं और एक्सचेंज करते हैं कि हमारे पोस्टेज स्टैम्प्स आप लेंगे, आपके कुछ हम लेंगे। उसको ज्वाइंट कहते हैं, ज्वाइंट पोस्टेज स्टैम्प्स। अभी रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्टर कम्युनिकेशन ने रिलीज किया था इंडिया रोमानिया का हेरिटेज प्रिजर्वेशन। बहुत सारी जगह आप नहीं गए होंगे, मॉन्यूमेंट्स आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन जब आप स्टैम्प्स देखते हैं तो उनमें उस मॉन्यूमेंट्स की फोटोज जब देखते हैं तो आपको याद आता है कि नहीं ये भी इंडिया में।
आपसे बहुत सारे लोग साउथ के मॉन्यूमेंट्स नहीं देखे होंगे। बहुत सारे लोग जो दिल्ली आए हैं वो उन्होंने रेड फोर्ट, कुतुब मीनार नहीं विजिट किया होगा, क्योंकि मुझे पता है जब स्टूडेंट्स लाइफ में बच्चे आते हैं तो वो घूमते कम है, पढ़ने में ज़्यादा फोकस होता है, फिर किसी ओकेजन पर वो जाते हैं। लेकिन जब आप स्टैम्प्स पे चीज़ें देखते हैं तब आपको याद आता है कि नहीं, ये चीज़ इंडिया में है और ये कल्चरल हेरिटेज है, हमारा हिस्टोरिकल हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है। इंटरैक्टिव एंड एजुकेशनल हॉबी। स्टैम्प्स एजुकेशनल हॉबी का बहुत बड़ा मीडियम है। आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, इवन कि अगर स्टैम्प्स किसी चीज़ पे निकला है, दैट मीन्स कि वो इसकी इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि स्टैम्प्स निकाल रहे हैं हम, डिपार्टमेंट अगर निकाल रही है, दैट मीन्स इट इज प्लेइंग ए बिग रोल, मेजर रोल। दैट इज व्हाट इट इज नॉट समथिंग दैट वी हैव कम अक्रॉस एनी आइडिया एंड गॉट इट प्रिंटेड। ऐसा नहीं है। डिस्कवरिंग हिस्ट्री एंड फॉस्टर स्किल्स। स्टैम्प्स के जरिए हमें हिस्ट्री बताते हैं। हमें किसी पर्सनालिटी पर अगर निकालते हैं स्टैम्प्स, तो यू मस्ट नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्सनालिटी इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि उस पर्सनालिटी को इंडियन हिस्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है। दैट इज व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग आल्सो दैट पर्सनालिटी। रिसर्च एंड नॉलेज, दैट टॉपिक व्हिच वी चूज putting on a stamp, that is also a topic of research, because that also uncovers the area of research, that gives a way that this personality or this theme or this institution need to be looked into. उन पे चीज़ें पढ़नी चाहिए, उन पे देखना चाहिए, उन पे रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के कल्चर और हेरिटेज को जब आप पढ़ेंगे तो उसको रिसर्च के इस पे पढ़ेंगे, तभी चीज़ें अनफोल्ड होती है अपने आप में। आप चीज़ें ऐसे आपको नहीं समझ में आएंगी जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं करेंगे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड में एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को जो है रिसर्च करके उस पर स्टडी करता है, पब्लिश करता है पेपर, क्योंकि इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच हैज सच ए डाइवर्स कल्चर that no country in the world is having such kind of diversity. Investment potential. As I told you earlier that this is the third most giving returns investment in recent days. It was found in a survey in India that people who are investing in flatly in stamps are getting much returns. Cultural appreciation. This is obviously a topic of cultural appreciation. Social connection. Socially connect करता है स्टैम्प्स एक दूसरे से। Environmental awareness. कुछ चीज़ें अवेयरनेस फैलाती हैं, आप लोगों तक पहुंचाती है इंफॉर्मेशन, ताकि एजुकेशनली, सोशली आप लोग अवेयर हो चीज़ों के बारे में। फ्लैट लैंड टूरिज्म। हम लोग बहुत सारी जगह मैंने बताया नहीं विजिट करते हैं, लेकिन फ्लैटली के थ्रू जर्नी हम लोगों की हो जाती है, दैट इज फ्लैटली टूरिज्म। अभी हम लोग सर ने बताया कि आप लोगों को नेशनल फ्लैटलेट म्यूजियम जरूर विजिट करना चाहिए। वो म्यूजियम हमारा बट प्रोजेक्ट है हमारे मिनिस्टर का, और उस म्यूजियम में टेक्नोलॉजी, एआई और डिजिटल को यूज करते हुए हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम बना रहे हैं। वो म्यूजियम यूएस के न्यूयॉर्क में जो म्यूजियम है वाशिंगटन में, उस म्यूजियम की स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना कुछ हम लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं यहाँ पे, so that this museum also becomes famous and also unique in India. This is an anatomy of stamps. What a specification stamps consist of and what does it mean? जो आप कॉर्नर पर zigzag पैटर्न देख रहे हैं, that is called perforation. किसी शीट पे स्टैम्प्स लगा होता है, उस पे आप लोग डॉट डॉट देखते हैं जिसके अंदर से निकालते हैं स्टैम्प्स, that is called perforation. और सेंट्रल स्टैम्प्स में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक सेंट्रल थीम, दूसरा उसकी वैल्यू कितनी है। जो 2 रुपये यहाँ लिखा हुआ है, जिसको 200 हम लोग पढ़ते हैं पैसे, इसमें इसका मतलब है 2 रुपये, उसकी वैल्यू कितना है। और तीसरा किस ईयर में निकला है, दैट इज यहाँ लिखा हुआ 1989। ये चीज़ 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैम्प्स के लिए। अगर ये नहीं होगा दैट मीन्स कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कब निकला और इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि 1852 में जब सबसे पहला स्टैम्प निकला था सिंडे डॉफ का, तो उसके कुछ आना थे वैल्यूज, और जिन लोगों ने उस स्टैम्प्स को ले लिया और आज अगर उसको मार्केट में लाते हैं, वो करोड़ में जा रहे हैं उसकी वैल्यू, क्योंकि वो सबसे पहला स्टैम्प है जो इंडिया में छपा है, सिंडे डॉफ। सेंट्रल थीम डिजाइन जिसको पिगलेट कहते हैं, और परफोरेशन के बीच में एक मार्जिन होता है, ये स्पेस को मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ पोस्टल स्टैम्प, दैट इज हाउ इट कम इनटू बीइंग। कंसेप्शन से लेकर प्रिंटिंग ऑफ प्रिंट, ये कैसे होता है, ये साइकिल है। क्योंकि स्टैम्प्स को किसी प्रोपोनेंट ओन करता है, उस प्रोपोनेंट जब हमें लिखता है कि हमें इस पे स्टैम्प्स निकालना चाहिए, तो वो प्रपोजल पीएससी में पुट होता है फिलैटेलिक एडवाइजरी कमेटी। फिलैटेलिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, उसके कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स में एमपीज होते हैं, कल्चरल और एकेडमिक्स बैकग्राउंड के कुछ पर्सनालिटीज होते हैं जिसको मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, और कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं। उस एडवाइजरी कमेटी साल में एक बार मीट करती है और पूरे साल के कैलेंडर को वो पास करती है। उस कमेटी में जब एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर ये प्रिंटिंग के लिए एसपीपी हैदराबाद जाता है। उसके आर्ट डिजाइन आर्टिस्ट उसको डिजाइन करते हैं कि कैसा होना चाहिए, उस डिज़ाइन को फिर पास किया जाता है कि हाँ ये बेहतर डिज़ाइन है। उसके बाद ये एसपीपी हैदराबाद जाता है। एसपीपी हैदराबाद इज ए पीएसयू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द कस्टडी ऑफ प्रिंटिंग ऑफ स्टैम्प्स। उसके बाद जब तो रिलीज करने के डेट्स आते हैं, उस डेट्स को सेलिब्रेट करने के लिए किसी डिग्नेटरीज के थ्रू रिलीज किया जाता है। उस रिलीज के बाद ये स्टैम्प्स फिलैटेलिक ब्यूरोज में सप्लाई किए जाते हैं। फिलैटेलिक ब्यूरोज, आप लोगों ने हेड पोस्ट ऑफिसेस विजिट किया होगा। पोस्ट ऑफिसेस 1,54,000, लेकिन हेड पोस्ट ऑफिसेस जो हैं वो आपको 500 समथिंग है। उसके साथ अटैच फिलैटेलिक ब्यूरोज होता है। उस ब्यूरोज का काम क्या है कि फिलैटेलिक स्टैम्प्स और एंसिलरीज को रखना और वहाँ से वो सेल करना। वो ब्यूरोज जब सप्लाई होता है वहाँ से फिर फ्लैटलिस्ट सर्च खरीदते हैं। फ्लैटलिक ब्यूरोज हैं टोटल इंडिया में। 625 फ्लैटलिक काउंटर्स हैं, 524 एचओज हैं। ये मैंने कहा कि एचओज जो होते हैं वो 500, किसी भी इस डिस्ट्रिक्ट में एक एचओ होगा जो हेड पोस्ट ऑफिसेस कहलाता है। उस एक एचओ से रिलेट करता है ये 78 ब्यूरोज। 78 ब्यूरोज सप्लाई करते हैं स्टैम्प्स को एचओज में, और फिर एचओ के काउंटर्स पर ये जाकर सेल आउट होता है और फ्लैटलिक ब्यूरो से भी सेल आउट होता है। Now I am showing you some stamps on animals that India Post has taken out. This is Bengal Tiger 1963. This is Peacock 1973 and 2017. Red Panda 1963 and 2009. Indian Elephant 1963 and 2001. You might be thinking why this year? क्योंकि इस साल इनके कंजर्वेशन, इनकी अवेयरनेस और इनके इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए डिपार्टमेंट ने सोचा कि वी हैव टू कम आउट विद स्टैम्प्स ऑन दीज एनिमल्स। और कुछ प्रपोजल्स हमारे पास मिनिस्ट्री से आए, कुछ प्रपोजल्स हमारे पास
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, जैसे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे टाइगर रिजर्व्स हैं। इन लोगों ने प्रपोजल बताया कि हमें इसमें स्टैम्प्स निकालना चाहिए, क्योंकि इनकी एक्टिविटी को देखते हुए स्टैम्प जब निकलता है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स घूमने का रीजंस मिलता है। That's why these years have been selected. These are the some endangered species over which stamps have come out. Snow leopard 1987, rhino 2015, 2011, great Indian rhinos 1962, Indian leopard 1976. These are stamps on some other animals like swamp deer, Ghorkhar, Kashmir stag, black buck, sunlight deer, Marco, that is Capra falcona. ये सब रेयर स्टैम्प्स हैं जिनको आप लोग कॉमन नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टैम्प्स हैं ये। Next. These are the stamps on some marine animals like sea cow, gangetic dolphin, turtles, river dolphin. These are the stamps which has come out. Next. They have also come out on monkeys and langurs. Golden langur 1983. Lion-tailed macaque 1983, slow loris 2000, next. These are stamps on breeds of cattle, that is God in 1963. These are indigenous cattle that we use in our homes and villages खासकर, क्योंकि अब शहरों में तो ये दिखते नहीं हैं, लेकिन गांव में आप जाएंगे तो लोग अभी भी पेट बनाकर इनको रखे हुए हैं। These are some stamps on animal, birds, animals. मिनिएचर शीट्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनिएचर शीट्स ऑन बर्ड्स निकाला है। मिनिएचर शीट्स क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टैम्प्स एक शीट पर जब आते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिनिएचर शीट्स। यहाँ आपको देखेंगे 4 बर्ड्स हैं जो एक ही शीट पे स्टैम्प्स निकले हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिएचर शीट्स ऑन बर्ड्स। इट केम आउट इन 2000। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 1980, निक्स लॉरिकन 1989, साइबेरियन क्रेन 1983। आप लोग zoological डिपार्टमेंट से हैं, आप लोगों को इनके बारे में आपने पढ़ा होगा और इनके बर्ड्स की जो मूवमेंट है, खासकर साइबेरियन बर्ड्स की, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया में किस मौसम में आती है, फिर साइबेरिया से अफ्रीका की तरफ कब चली जाती है, फिर रिटर्न्स किधर से होती है, बिकॉज देयर मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। These are some other birds which came out in 2016. Other birds: Western Tranquil 1975, Indian Beta 1975, Black-headed Oriole 1975, 1975 is end. Next, these are some exotic birds. These are also the conservation award 1983, Project Tiger, 2016, Wildlife Sanctuaries and National Parks, Deer 1983। प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जान रहे होंगे प्रोजेक्ट टाइगर कितनी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि टाइगर जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल है, और इस नेशनल एनिमल के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, नॉट बट नाउ बट सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एंड दैट efforts are being seen also in stamps. These are other wildlife sanctuaries and national parks that recently we have printed in 2020. These are animals. Asiatic lion, 1999, or WWF. We have collaborated with WWF, and they have, being a proponent, asked us to come over with these stamps. These are some other stamps on tigers. A special cover. This is another thing which is not a stamp, but it is an envelope of a special cover. This is special cover comes out to mark a special occasion that is very not much important to come out with a stamp, but it is an important, so we come out with a special cover. And a special cover एक envelope की तरह होता है जिस पे प्रिंट होते हैं ये, और स्टैम्प्स के साथ उसको कैंसिल किया जाता है. So this is two different things. A special cover is different thing, the stamps is another different things, and first day cover is another things. First day cover is the first day cover that comes out with the stamps that also marks the day when which stamps came out. So along with the stamps of commemorating stamps, we come out with the FTC, that is first day cover. Next. So far these have been the presentation on flatly on animals. I might be looking that some of the faces are looking bored कि ये animals पे बहुत ज़्यादा boring lecture है, तो मैंने कट शॉर्ट इसीलिए भी किया कि I don't want to be your bored, और चीज़ें बस आपको ये समझाने की मेरी रीज़न था कि you should know that the stamps that coming out through India Post is playing a very important role. These are reflecting the culture, history, mythology, ethos of India. And if you want to study India, real India, then you must go through the stamps in India. और खासकर वैसे stamps जो animals पे निकले हैं, birds पे निकले हैं, because this gives you an idea why these animals and birds are important in India. Then being belonging from the zoological department, you will study more about these animals. क्योंकि animals तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये animals क्यों चुने गए? ये आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, क्योंकि zoological department ये बात बताना चाहता है कि एनिमल्स इंडिया में जितने हैं उसमें कुछ एनिमल्स इंडिया में इंडिजिनस है और कुछ को हम लोगों ने बाहर से लाया. जैसे चीता हम बाहर से लाए, इंडिया का नहीं है. गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके चीता को छोड़ा एमपी में, लेकिन अब तक सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ. दैट इज द थिंग्स यू हैव टू लुक इनटू इट कि व्हाई दीज आर नॉट कमिंग आउट. चीता इंडिया में क्यों नहीं रह पा रहा है, ये आपको समझना है, या आपको स्टडी करना है कि ये चीता इंडिया के लिए क्या ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल क्यों नहीं इंडिया सपोर्ट कर पाता है उसको, जबकि इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है अफ्रीका में, वहाँ रहता है. इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी अफ्रीका में वहाँ रहता है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहा है. तो ये चीज़ें आपको समझनी है, क्योंकि बीइंग एट ज़ूलॉजिकल डिपार्टमेंट और देशबंधु कॉलेज एक बहुत अहम कॉलेज है, एक नोन कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी. So being a student of Deshbandhu College, you must also know that the zoological department should play a leading role in Department of Zoology in Pan India. I will not take much time of yours, but I will conclude my lecture by a couplet, जो आप लोगों को शायद
कहीं ना कहीं मोटिवेट करे। एंड दैट कपलेट इज, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से। अर्श कहते हैं आसमान को, फर्श कहते हैं ज़मीन को। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। I have to go beyond the horizons. So you have to study hard, get your names on college and faculties written in the history of India that they are your faculties, your teachers. Get them proud. Thank you so much. Thank you so for your enlightening words. It certainly made our day fruitful. After this wonderful lecture by our guest speaker, I'm pretty sure a lot of you must be very curious about certain things. So you all can put up your question to our speaker. Queries, please. I have one question, sir. Sir, just wanted to know that how does your institute or the government decide that this stamp is now old, we have to have another stamp of the same value, new stamp every... Sir, and Professor Varsha Paveja ma'am to felicitate them with identity cards. I would like to invite our teacher in charge, Indrakant sir, and our guest to announce the names of new council members, and also Professor Kamal sir and Professor Varsha Paveja ma'am to felicitate them with identity cards. नीचे तक है मुंडी आ गई अभी भी आ रही है Okay, congratulations all the society member from Department of Geology. To start with, I'll start from bottom to top. Okay, Zoya Ali, editor from second year. Zoya. She's here? Okay. So, Zoya, congratulations. Next, Varun. Again, second year as an editor for Camera Magazine. Varun. Vabya. Again, editor from third year. Okay. Now Prithvi from first year. CR from the first year. Prithvi. Class representative. Class representative again from first year. Isha Garg. Isha Garg. Class representative from second year, Puneet. Yeah, first Isha. Okay. Now, Puneet Garg. Puneet, second year. From third year, class representative, Aditya Gupta and Prerna Bhatt. Aditya Gupta is absent. Okay. Now, council member from second year, Tanishq Ras, and from first year, Manisha Roy and Ayushi Goyal. The council member.
Ayushi, okay, and Manisha. Manisha. Okay, now treasurer Shreyas Kumar from second year and Srishti again from second year. Okay, Shreyas and Srishti. Shreyas, yes. Public Relations Head Shubham Tanwar. Social Media Head Anushka Tomar. Cultural Secretary from second year Zoya Khan and PS Sri Lakshmi. So now we have two Zoya in the committee, right? Okay. And secretary from third year Kunal Goyal. Vice President from second year Akanksha. And finally, President Priyanshu Bansal from third year. All the office bearers, you can come on stage, have a group photograph. All teacher, faculty members, please. All the faculty members. Being a speaker today and imparting valuable insights, I must thank our principal sir, Professor Rajendra Kumar Pandey sir. He couldn't join us due to his prior commitment. He is a humble and hard-working person under whose leadership our college is reaching a new heights. I also convey my sincere gratitude to our Vice Principal sir, Professor Sunil Kayas, for inspiring and guiding us. I would also like to thank Professor Kamal Kumar Gupta sir for encouraging his words. Thank you sir for being a rock of support in the department. Special thanks to our TIC, Professor Inderkant sir for being with us and guiding us, and special appreciation to each member of Department of Zoology teaching faculty. Without their blessing, this event wouldn't have been a success. My heartfelt gratitude to Dr. Anjana and Dr. Priyanka for circulating the details of the event to all possible social platforms. At the end, I would like to take this opportunity to congratulate and thank Staff Advisor of this event, Dr. Sandhya Rai. We have been fortunate enough to be backed by a team of very dedicated, motivated students, office bearers and volunteers. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to make this event successful beyond their comfortable zone. I am very much thankful to all the non-teaching staff members who always stand by us and motivate us. I feel proud and thank you all for making this event successful one. With a genuine sense of appreciation, I thank all the participants and teachers from the different departments of the college for their active participation in this event. Special thanks to Dr. Monica ma'am from UNDC College to join us. It's been a pleasure being with all of you today. Thank you so much. Have a nice day. Thank you so much, ma'am. There is an announcement for everyone present here. After this event, you can gather in the lab 2 in zoology department for the refreshments.
So now I request everyone to stand for the national anthem.